चैप्टर है, वेरी वेरी वंडरफुल चैप्टर, यू हैव व्हाट यू सीक। जो आपको चाहिए, अंदर से जो चाहिए वो आपको मिलता है। गुरुजी कहते हैं इसमें जो वी हैव कम इन टू दिस बॉडी 9 months in the mother's womb, then he says 19 years we have taken that this body has grown up and taken a shape. All the organs, everything has taken the shape. And he says that intellect to mature and the emotions to culture and the mind to form, it has taken 84 lifetime. 84 लाख देवी देवता बोलते थे ना हम लोग, यहां पे बोल रहे हैं 84 लाइफ टाइम इट हैज टेकन फॉर आवर इमोशंस, for our mind, for our intellect to mature, to be formed. And हम कहते हैं इस बॉडी, कोई एक नया जीवन आ गया जब कोई व्यक्ति, कोई बेबी बॉर्न होता है, गुरुजी कह रहे हैं वो नई बॉडी में पुरानी सांस आ गई, पुराना प्राणा आ गया, पुरानी कॉन्शियसनेस आ गई. द कॉन्शियसनेस is very very old, infinite old. It has come in the new body. Body has taken birth. The consciousness was there all the time. And so the mind is ancient. What happens? Once you are leave the body, then this mind travels along with your Atma in the periphery. And the mind takes all the impressions, whatever the impressions you have, positive or negative impressions. And these impressions, along with these impressions, this mind along comes in the new body. All the old emotions comes in the new body. This is how the whole cycle goes on. A sum total of whole experiences are available when a baby is born, because his consciousness is very old and it carries all the impressions in the mind. So these impressions, these experiences, they are botheration for you. They are bondage for you. They are restrictions for you. They may be pleasant, unpleasant, good, bad, right, wrong. जो भी है ये, फियर हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, खराब हो सकता है, सारे के सारे क्रेविंग हो सकती है, अवर्शन हो सकती है, ये सारे के सारे इंप्रेशन जो हैं आपकी बॉन्डेज है. ऑल दिस इंप्रेशंस. और इसी को क्या बोलते हैं? कर्म भी हैं ये संचित कर्म है. दिस संचित कर्म जो है आपको भोगने पड़ेंगे प्रेजेंट लाइफ में. This you have to undergo. Only the fresh karmas, by doing something, you can dissolve this sanchit karma. You will feel less pain of this sanchit karma. See, Gurudev says pain is inevitable, but suffering is optional. If you have slapped somebody in the previous life, this life you will definitely get back whatever you have done in the past life. But pain will be there, but suffering will be less if you are on the spiritual path. So the whole journey becomes not that bad. And then when you are in the spiritual path, you make fresh karma which are not unpleasant. In fact, slowly, you reduce all the impressions to zero. And that is the state where you merge with the divine. उस अवस्था में कोई मोह नहीं रहता.
नहीं तो मोह मीन्स एंटेंगलमेंट। मैं प्यार करता हूं अपने लड़के से क्योंकि मेरे को डर है मेरा लड़का कहीं, एंटेंगलमेंट। सो देर इज नो एंटेंगलमेंट आल्सो, मोह इज एंटेंगलमेंट। एंड लव, लव जो है ना वो इनफाइनाइट है। लव इज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी एंटेंगलमेंट। एंड जो ये प्यूरिफिकेशन हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ द सुदर्शन क्रिया एज शेयर्ड बाय राजशेखरन, as by padam sadhana, by spiritual practices, by swadhyay, by reading the books. Reading, there are three items again Gurudev has said in this chapter also. One is reading or listening. Second is just going through what I have listened, what I have read, just contemplating on that, manan. पहला है श्रवण, दूसरा है मनन, third is only the nididhyas. Manan is very, very high. Otherwise, libraries are full of books, and so many people have read so many spiritual books, but once they have not adopted in the life, it is zero. Gurudev says, people have read Ashtavakra Gita, so many people have done it, but they don't understand what is the meaning of Ashtavakra Gita, because they have not listened or they have not read the Ashtavakra Gita as a devotee. They were not qualified. In the first chapter, Gurudev has said what is the qualification for reading the Ashtavakra Gita, for listening to the Ashtavakra Gita. First qualification जो है, कोई बोलेगा, शेयर करेगा? Now we are almost at the end. हाँ जी, सीमा गुप्ता बताइए, qualification of Ashtavakra Gita for that matter anybody who will like to say. First chapter में हमने सीखा था there are three qualifications to listen to Ashtavakra Gita. कौन सी है? मुमुक्षा, मुमुक्षा, मुमुक्षा। नहीं, qualification Discipline क्या of है? the body, discipline माइंड को प्योर करना है, बॉडी स्पीच एंड माइंड को प्योर रखना है। Body, first is for body you should observe what food you are taking or whether you are doing sadhana or not, asana or not. Second is mind, mind के लिए आप meditation कर रहे हो, नहीं कर रहे. And third is silence. आलतू फालतू की बातें बोल रहे हो कि अपनी बातों पे आपको कंट्रोल है? महीने में, साल में कम से कम 1-2 बारी आपने साइलेंस ऑब्जर्व किया है 3-4 दिन के लिए? Not necessary in advanced course. If you can do it alone, you can do it. So these are the three qualifications. First, body. Second, mind. And third, silence. These three qualifications who is having, who has adopted these disciplines, then only he understands what is spirituality. Otherwise it goes above the head. इस चैप्टर में गुरुदेव ने बार बार बोला है. Because what happens otherwise? First sentence becomes the reverse of the second sentence. Both opposites are available. And to understand both opposites, you need these three basic qualifications. तो यहां पे क्या कह रहे हैं? योगा जो है ना, और the merging with the divine happens when you are believing in this world. जब संसार को आप बिलीव करते हो, संसार में हर एक व्यक्ति को बिलीव करते हो, अपने आप को बिलीव करते हो. अभी राजशेखर ने बोला कि I was not able to do it because he was not having the strength. He was not having the belief in his own capability. That skill was imparted by Gurudev in a small course of wellness program for substance use. And within 7 days, he came out. He believed in his strength. So Gurudev यहाँ पे इसी चैप्टर में बोल रहे हैं, believing in the world, believing in your own self or your own capability, and believing in the master. These three things when happens, then what happens? Then a purity comes. You purify yourself.
Slowly, the whole process is from the birth to the death is the purification of your mind, purification of your emotions, purification of your intellect, purification of your body. And once these are purified, then you get the moksha, the liberation. Then you merge with the divine. That is the yoga. Yoga is believe in yoga, then you will be complete. You have to believe in the law of nature. So otherwise nothing, there is no forward, nothing happens, कुछ नहीं होता उसमें. तो धीरे धीरे जो डिविनिटी होती है उसके पास में आप आ जाते हो और डिविनिटी का मतलब ही समझने लग जाते हो. सो इट कैन बी डन थ्रू योगा. पहला क्या है? योगा. योगा में क्या आ गया हमारा? आसन आ गया, सुदर्शन. देन दूसरा है मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया आ गया, मेडिटेशन आ गया. तो पहला तो योगा आ गया. दूसरा क्या है? ज्ञान से, जैसे हम ये सत्संग सुन रहे हैं, नॉलेज. सेकंड इज नॉलेज. नॉलेज से वी कैन मर्ज. नॉलेज में भी वो नियम पाले करने पड़ेंगे. वो नियम पाल करने पड़ेंगे तो इसका मतलब वो योगा ही आ गया, वो कनेक्टेड हो गया. बेसिक नियम तो है ना अष्टावक्र को सुनने के लिए, नॉलेज सुनने के लिए. प्योरिटी ऑफ द बॉडी, प्योरिटी ऑफ द माइंड, प्योरिटी ऑफ द स्पीच. तो वो तीनों चीजें हो जाएंगी. तीनों चीजें करने के लिए फिर योगा हुआ, फिर ज्ञान आपके अंदर जाएगा. यह ज्ञान अंदर से ही आ जाएगा. वो जैसे कबीर ने बोला ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भलो न कोय, दो अक्षर प्यार के पंडित भयो सो होए. तो जब आपके अंदर प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो प्यार प्रबलित हो जाएगा. तो सेकंड इज बिकॉज ऑफ द लव यू मर्ज विद द डिवाइन. पहला योगा, दूसरा क्या हो गया? प्यार, लव, भक्ति. डिवोशन, लव मीन्स भक्ति, डिवोशन. और तीसरा नॉलेज, ज्ञान. ज्ञान से, भक्ति से या अपने योगा से, तीनों से आप मर्ज हो सकते हो उस इनफाइनाइट डिविनिटी के साथ. कहते हैं कि एक भागवत में ना एक कहानी आती है कि जो है ना वो उनसे पूछा गया गोपियों से कि चलो कुछ ज्ञान की चर्चा हो रही है, वहां पे चलते हैं. चलो कुछ योगा हो रहा है, वहां पे चलते हैं. गोपियों ने कहा हमको कहीं नहीं जाना, हमको ये बताओ भगवान कैसे हैं, हमारे कृष्ण कैसे हैं. वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट मेडिटेशन, योगा और नॉलेज. सिंपली वी वांट टू नो हाउ इज अवर भगवान, गॉड. So they were already intoxicated with the love of the divine. They were in complete devotion. They didn't require anything. तो क्या होता है? श्रद्धस्व तथा श्रद्धस्व. तीनों कैटेगरी में, तीन कैटेगरी क्या हो गई? नॉलेज, डिवोशन, ज्ञान, भक्ति और योगा. योगा भी एक्चुअली तीनों को मिलाकर ही है, लेकिन योगा में कर्म है आपका. आप देखा जाए तो कर्म कह सकते हो, एफर्ट्स. तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों से ही आप उसमें मर्ज हो सकते हो, लिबरेशन में पा सकते हो. लेकिन कब हो सकता है वो? जब आप श्रद्धा से करो, जब आप डिसिप्लिन के साथ करो, जब आप उसके बॉडी की प्योरिटी के साथ करो. पतंजलि में बोला है बॉडी को प्यूरिफाई रखना है. पानी बहाना चाहिए बॉडी पे, नहाना चाहिए रोज, पानी अंदर और बाहर जाना चाहिए, यम नियम फॉलो करने चाहिए. तो आपको वो योगा हो जाएगा कर्म योग से, भक्ति योग से या ज्ञान योग से. तो ये यूनियन हो जाएगा. एंड यूनियन जो होता है ना, तो क्या होता है? यूनियन में अपना भी ज्ञान नीचे से ही आ जाता है, अंदर से ही. जैसे सारे ऋषियों को ज्ञान अपने अंदर से ही आया था, उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी. तो इसके लिए क्या जरूरत है? श्रद्धा, डाउट नहीं. डाउट और श्रद्धा के ऊपर मैंने कई बार बोला हुआ है. श्रद्धा इज द फेथ इन द अननोन एंड डाउट इज रिवर्स,
डाउट इन माई कैपेबिलिटी, डाउट इन द वर्ड, डाउट इन द डिविनिटी. एक बिजनेसमैन अगर डाउट करने लगे, he cannot proceed. Somebody says, give me this. He sends that person without waiting for the money also. Some businessman says, this is very good, and we believe and we take it. If we doubt everything, we cannot move forward. इसी में गुरुजी एक बिजनेसमैन की कहानी सुनाते हैं, वो एल्डरली कपल की, कि वो ना हर चीज में डाउट करते थे. इतना डाउट हो गया उनके कि घर से बाहर निकलने के टाइम में 5 कदम चलने के बाद में ही वो देखते थे, यार मैंने ताला बंद किया नहीं किया. ही विल कम बैक. कहते महाराष्ट्र के दौरे में था, मैं गुरुजी यहाँ पे स्टोरी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के दौरे पे था, तो एक लेडी मेरे पास आई कि गुरुजी कुछ करो, मेरे हस्बैंड जो है ना अब चल ही नहीं पाते. कई बार तो वो स्कूटर पे जाते हैं और 1 किलोमीटर से वापिस आते हैं कि घर देख कर आए, यार ताला बंद किया नहीं किया, लाइट बंद करी कि नहीं करी. डाउट 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 डाउट. तो क्या होता है, ये जब डाउट होता है, संशय, संशय होता है तो आत्मा विनाश्यति, प्राण जो है नीचे आ जाते हैं. डाउट ब्रिंग्स द प्राणा डाउन. संशय आत्मा विनयति, नष्ट कर देती है प्राणा को. आत्मा मीन्स प्राणा. तो जब प्राण नष्ट हो जाते हैं तो यू गो इन डिप्रेशन slowly, slowly. You don't want to talk to anybody. Trust in yourself. Have faith in the divine. That is the beautiful message. Trust in the sun, moon, stars, trees, birds, and all the people in the world belong to you. सब मेरे हैं. The stars, the moon, the trees, the birds, everything belongs to me. And don't get entangled with anybody. सब मेरा है, लेकिन मैं किसी के साथ में मोह में नहीं फंसा, एंटेंगल नहीं हुआ. ये सब मेरा है, मतलब कि मेरा बेटा है, लेकिन मैं उससे मोह नहीं करूं, प्यार करूं, मोह नहीं करूं. लिटिल डिफरेंस बिटवीन द मोह एंड लव. इन मोह वी हैव फियर, वी नीड समथिंग बैक. इन लव वी डोंट वांट एनीथिंग, जस्ट लव इज गिविंग. मोह में you want, expect something, you have some fear, you have some desire. So सब कुछ मेरा है और प्यार से मेरा है, अहंकार से नहीं, प्यार से मेरा है. तो ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा फिर उसमें, उसको कहते हैं कि धीरे धीरे जब आपके अंदर ऐसा हो जाता है तो ज्ञान स्वरूप हो जाते हो, खुद ही यू बिकम नॉलेज, यू बिकम गॉड. You become God. You are God. Then Gurudev says, you are God. And hearing this, many people say, कि क्या है, भगवान कहां पे है? भगवान तो सारी जगह है ना, आपके अंदर भी है, बाहर भी है. हवा सारी जगह है, आपके अंदर भी है, बाहर भी है. Air is everywhere. Like that, God is everywhere. And you are in that ocean of God. Ocean of consciousness, and you are God. कहते हैं पीपल बिकम क्रेजी हो जाते हैं, इगोस्टिक हो जाते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. दे डू गो ऑन मेडिटेटिंग. गुरुदेव ने यहाँ पे बताया, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, दे डोंट वांट टू कम इनटू द वर्ल्ड बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द वर्ल्ड. वो एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हैं, तो वो इगोस्टिक हो जाते हैं. मैं बड़ा साधक हूँ, 20 साल से साधना कर रहा हूँ. उनको कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, एंग्री हो जाते हैं. What is that? They have not purified. They have just wasted 20 years. यहां पे गुरुजी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि they are not in the right technique. 2 घंटे 3 घंटे सवेरे शाम आप करिए अपनी साधना, दिन में अपना व्यापार करिए, दिन में दुनिया को देखिए. उसी भावना से दुनिया में को देखोगे तो यू विल डू द तपा, यू विल डू द मनन, कि आपको अंदर क्या मिला और बाहर की दुनिया में उसको अडॉप्ट किया. then you will slowly get purified. Every day you will get purified. सारे दिन ही मैं मेडिटेट करता रहूं, कहीं जंगल में जाके, कहीं फॉरेस्ट में जाके, तो क्या होगा? दिन में मेरे को संदीप कुछ बोलता है तो मेरे को तो बोलेगा ही नहीं, मैं तो अलग बैठा हूं चुपचाप.
20 साल बाद मैं आया अपने घर में, संदीप ने मेरे को कुछ बोल दिया तो मैं डिस्टर्ब हो गया। क्यों? मैंने प्यूरिफाइड ठीक तरह से नहीं किया। एवरी डे जो मेरी इमोशंस, जो मेरी माइंड में दुनिया की वजह से कुछ आता है, उसको फिर मैं अगले दिन प्यूरिफाई करता हूं। एवरी डे 24 आवर चार्ज रहता है सुदर्शन क्रिया का। एवरी डे आई प्यूरिफाई, और धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन इतना ज्यादा होता रहता है कि मैं भगवान बन जाता हूं। दैट इज व्हाट ही सेज। कहते हैं जो जीसस था ना, उसको थोड़ा सा भय था उस टाइम में। भय बिकॉज ही वाज नॉट इन द फियर इन दैट सेंस, बट ही सेड दैट कि मैं लोगों को बोलूंगा आई एम गॉड तो पीपल विल स्टार्ट लाफिंग। सो व्हाट ही सेड, आई एम सन ऑफ गॉड, एंड स्टिल ही वाज क्रूसिफाइड। पीपल डिडंट अंडरस्टैंड। और एक वो मंसूर था, कहते हैं वहां पे एक और कोई मंसूर हाजी, मंसूर हालाजी। तो मंसूर हालाजी हुआ, वो उसने बोल दिया मैं गॉड हूं, और उसको भी लोगों ने मार दिया। मरते मरते भी लोगों ने कहा कि यार तू बोल दे तू गॉड नहीं है। कहते मैं क्यों बोलूं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई हैव एक्सपीरियंस, अंदर से मैं गॉड ही हूं, कुछ फर्क नहीं है। गॉड कोई देखने की चीज नहीं है, गॉड कोई ओनली एहसास है। गॉड ये नहीं है ऊपर बैठा हुआ है कहीं पे, पूरी कंप्लीट सृष्टि गॉड है, नेचर गॉड है, 5 तत्व गॉड है। और ये 5 तत्व का ही जो होता है ना, 5 तत्व का कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन से ही हमारे अंदर दोष आ जाते हैं। दोष किस में आते हैं, कैसे? वाता पिता कफा। वाता पिता कफा आते हैं, सवेरे में वाता पिता कफा कुछ होते हैं, शाम को वाता पिता कफा कुछ होते हैं। अर्थ और वाटर के कॉम्बिनेशन से वाता पिता कफा आ जाते, एयर से, अग्नि से तो पिता बन जाता है। तो ये वाता पिता कफा जब आते हैं ना, along with this body certain qualities are endowed. A person has a particular nature. Consider वाता पिता कफा। जब सूर्य राइज होता है तो क्या होता है, पिता राइजेस। पिता मतलब कि एक्टिविटी, ग्रोथ, एंड देन वाता थोड़े दिन तक, जब दिन में हो जाता है। It is very interesting that these doshas in the body, vata, pitta, kapha, rise and fall. How they affect your activities, your behavior, your emotions. ये तीनों पे, आपके माइंड पे, इमोशंस पे, इंटेलेक्ट पे, बिहेवियर पे, बॉडी पे, ये वाता पिता कफा अपना भी आते हैं और अपना भी आपको डिस्टर्ब करते हैं, उनको फंसाते हैं। इसीलिए इनको बोला है दोष। और वाता पिता कफा को प्यूरिफाई करना है। क्यों, कैसे प्यूरिफाई करोगे? यू आर बियॉन्ड दिस प्रकृति, इनको प्रकृति बोल, यू आर बियॉन्ड दिस नेचर, इनको छोड़ना है, विकृति में नहीं फंसना। एक विकृति होगी जब इसमें फंस गए, तो प्रकृति में ही, अपनी नेचर में ही रहना है। तो क्या करना है? डोंट कंसीडर योरसेल्फ लेजी, डोंट कंसीडर योरसेल्फ दैट यू आर हॉरिबल, डोंट कंसीडर दैट यू आर डिप्रेस्ड, don't consider that you are egoistic, don't consider you are that hopeless, don't consider yourself that you are angry. अपने आप को लेबल नहीं करना, अपने आप को बोलना है मैं भगवान हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का सर्वेंट हूं, मैं भगवान का सखा हूं, और मैं खुद भगवान हूं। जैसे हनुमान जी कहते हैं ना, जब मैं काम करता हूं, हनुमान से पूछा गया तुम कौन हो भैया, तो कहते मैं जब आपका काम करने जाता हूं तो मैं आपका सेवक हूं, मास्टर, यू आर मास्टर। बोला इसमें मास्टर और सेवक में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिस्टेंस है। मास्टर थोड़ा ऊपर है, सेवक थोड़ा नीचे है। फिर उसके बाद में सखा है, जैसे अर्जुन को उसने, कृष्ण ने बोला तुम मेरे सखा हो। फिर सखा आया, कंपेनियन आया, दोनों में थोड़ा डिफरेंस कम हो गया। और फिर जब धीरे धीरे आप उसकी बातें समझ के अपने अंदर व्यवहार करा, तो तुम कहते हो तुम भी मास्टर भी हो गए, यू आर इनफाइनाइट, यू आर गॉड। तो ये 3 जो जर्नी है ना, सेवक से सखा और सखा से भगवान, तुम ही भगवान हो। जब तुम ही भगवान हो जाते हो ना, तो क्या होता है, गुना समवेश तो देश यति चा,
You become aware, you become alert, you observe what is happening, and you say, nothing can touch me, nothing will touch me, nothing can pierce my inner course, nothing, no event can ever destroy the light in me. And you start feeling you are joy, you are bliss, you are infinite, you are a wonderful person. कहते हैं ये बड़ा कंफ्यूजिंग है जिसने वो नियम नहीं लिए. कौन से नियम थे अष्टावक्र के? प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ द स्पीच. वो आपके हाथ में है. यम नियम पतंजलि योग सूत्र में बोलते हैं, पहले यम नियम करो, तो उसके बाद में आसन करो, उसके बाद में आसन के बाद में धीरे धीरे जो है ना प्राणायाम करोगे, प्राणायाम करके आपको प्रत्याहार करोगे, प्रत्याहार के बाद में धारणा करोगे, धारणा के बाद में आप ध्यान करोगे, और ध्यान के बाद में समाधि लग जाएगी. वो 8 के 8 पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप खुद अनुभव कर सकते हो अगर आप खुद यम और नियम फॉलो कर लो बस, और प्रैक्टिस करो. गिव टाइम फॉर योरसेल्फ. एवरीडे चार्ज रखो अपने आप को. कुछ थोड़ा सा आसन करो, थोड़ा सुदर्शन क्रिया करो, थोड़ा मेडिटेशन करो. व्हाट इज देयर? यू कैन डेफिनेटली डू. गिव 2 hours to yourself, maybe 1.5 hours in the morning and a half hour in the evening. Once you give 2 hours to yourself, slowly from servant to sakha to the infinite consciousness, you will become, and that is the liberation, that is the moksha. Last para I will read now. This is very beautiful, from where he is saying, जो ये चीज बोलते हैं ना कि I am joy, I am light, I am bliss, कहां से बोलते हैं ये? गुरुदेव बोलते हैं it is very deep inside you. It comes from within you. And all this come and go. Shake yourself, wake up, open your eyes, see where are you. You will see that there are no two. There is no God and no you. If there are there, then there is God. There is neither I nor God. What is it? It is divine. It is hollow and empty. Again आ गया देखो. इसमें पहले भी बोला गुरुदेव ने, साइलेंस रखोगे एडवांस कोर्स करोगे, ऑल एंड एम्प्टी करोगे एडवांस कोर्स करोगे. इट इज ऑल स्पेस एस्टेब्लिश्ड इन द माइंड. स्टे इन द स्पेस. So many changes have happened in the body, and you have moved through all these changes. You are the changeless consciousness. Very wonderful and very powerful sentence. You are the changeless consciousness. That consciousness which comes in the body, in the new body, which is infinite, which is very ancient. And you are the changeless energy. There is no, अभी देखो साइंस भी बोलती है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. तो यू आर चेंजलेस एनर्जी. एक जन्म से दूसरे जन्म में आती हो. तो यू आर चेंजलेस एनर्जी. यू आर डिवाइन. यू आर जॉय. यू आर लव. यू आर एवरीथिंग. और वो कहां से आ रहा है? अंदर से ही. देयर इज नो आई. अहंकार खत्म हो जाता है. And there is no you. बस क्या रह जाता है? Joy, love, bliss. And that is the objective of this human life. Human life जो है ना, बड़ी रेयर है, बड़ी रेयर है. और ये मिली है, इसको वेस्ट नहीं करो. Give 2 hours. Give 3 days, 4 days in 4 months. Do advanced course. Do advanced course. ये प्यूरिफिकेशन है, और कुछ नहीं है. प्यूरिफाई योरसेल्फ. एडवांस कोर्स में नहीं बैठना चाहते, मत बैठो. कहीं चले जाओ, 4 दिन चुप अपने आप को देखो. ऑब्जर्व योरसेल्फ. देन यू विल गेट प्यूरिफिकेशन. सो वंडरफुल, सो वंडरफुल. हाँ जी, टाइम हो गया है. तो अभी कोई प्रश्न किसी का तो पूछिए. चैप्टर इज डन.